د انسان کنونشن ته تاسو چې په کوم شوق راغلی یې زه د هغې شکریه ادا کوم او دا په حقیقت کې د ټول پاکستان له کسانانو سره د جمعیت علماء اسلام د ملګرتیا علامه ده. تاسو د دغه طبقې نمایندګي کوئ. جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه چې کوم خپل منشور جوړ کړ او د جماعت خپل عقیده او نظریه دنیا ته وړاندې کړله، په هغې کې د کسانانو په سر لاس کېښود، محنت کشو په سر لاس کېښود، د اسلام په رڼا کې د دوی د حقوقو آواز اوچت کړ او هغه طبقه چې په دغه محنت کشو، په کسانانو، په مزدورانو به جبر کاو، هغه طبقې ته مقابلې ته راوتلی یو. موږ نن بیا تاسو ته په هغه آواز کې خبره کوو چې موږ ډېرې کامیابیانې حاصلې کړې دي او اوس مولانا فضل علي صاحب د خپل دور حکومت په حواله د هغو ټولو اقداماتو ذکر وکړ چې د زراعت په شعبه کې له کسانانو سره د مرستې کوم اقدامات کړي وو، هغه ډېر په تفصیل سره یاد کړل. د تعلیم په شعبه کې هغه تمام اقدامات چې یو غریب قوم او د غریب قوم د بچو دپاره لازمي او ضروري اقدامات وو او هغه د جمعیت علماء اسلام د منشور حصه وه، په هغې عمل درآمد وکړ. نن ورونو بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لاړل چین ته او ظاهره خبره ده چې په دغه ایشیا کې او په دنیا کې چین د پاکستان یو کلک ملګری ده. د اویاو کالو د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه نو سرمایه‌دار دنیا را مخ کړ. مغربي قوتونو د پاکستان په لارې د چین د تجارت لاره نیولو دپاره اقدامات وکړل. دلته هغه قوتونه پیدا کړل چې د پاکستان د ترقۍ مخه ونیسي، د پاکستان په لارې د چین د تجارت مخه ونیسي. او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد په ځمکه پروت ده. زمونږ 80% معیشت دار و مدار او انحصار هغه په زراعت باندې ده. او ما ته په خپله چینیانو ویلي دي چې موږ د پاکستان په هر شعبه کې
सरमायाकारी कवल غواړو د پاکستان مرسته کول غواړو او زمونږ ټولو نه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده ولې چې دغه میدان د پاکستان ټولو نه پراخ میدان ده د پاکستان معیشت مدار په دغه باندې ده لیکن دنیا یو جنگ شروع بدقسمتی سره زمون په وطن کې خپل ملګری پیدا کی چې هغه د خپل د وطن د ترقۍ لارې نیسي دا میډیا وال وایي چې په اردو کې خبره وکړه پښتو خبره خو به تر تاسو تر موږ پورې پاته شي او که اردو کې خبره وکړو نو پښتون په اردو پوهېږي هم او ستاسو اواز به هم ټولې دنیا ته لاړ شي پښتون ته الله ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي دي زه چې پنجاب ته لاړ شم زه په پنجاب کې په پښتو کې تقریر نشم کولی ولې هغه په پښتو نه پوهېږي خو چې پښتنو ته راشم او په پښتنو کې په اردو کې تقریر کوم نو هېڅ چا اعتراض نه کړی وایي موږ پرې پوهېږو بس ټیک ته خبره چې نو دغه بالادستي خو تاسو ته حاصله ده که نه بہرحال आज मुल्क की मईशत जमीन बोस हो चुकी है चीन की 70 साला दोस्ती जब माशी दोस्ती में तब्दील होने लगी और चाइना ने जब दुनिया से तिजारत करने के लिए पाकिस्तान को अपना गुजरगाह बनाया पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करने का फैसला किया तो मेरे दोस्तों हम हैं बड़े छोटे लोग गरीब लोग लेकिन मैं हमेशा हुक्मरानों से कहता हूं कि ये जो बहुत बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आ रही है अजीमुशान इमारत है जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो जरदारी साहब ने बनाई है ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई है और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के साथ तिजारती ताल्लुक ये पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा मसला था इस पर अपने अपने दौरे हुकूमत में सबने पेशरफ्त की लेकिन 1995 में जब मैं फॉरेन कमेटी का चेयरमैन था और चीन की दावत पर मैंने अपनी कमेटी को वहाँ चीन ले गया तो पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत के लिए मैंने उनको 7 दलाइल दिए और आज भी वो रिकॉर्ड पर हैं और फिर उसी पे इत्तेफाक राय हुआ और आज ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है इसकी तह में जो रोड़ा और सरिया है वो ये फ़कीर फजलुर रहमान आपके सामने खड़ा है हमने पाकिस्तान को अपना घर समझा इस घर को खुशहाल रखना इसको अपना अकीदा बनाया इसको अपना नजरिया बनाया लेकिन मुझे याद है जमीयत उलमाए इस्लाम के पेशावर सूबे के मरकज में एक कन्वेंशन था 2017 में मैंने ये बात कही थी आप में से बहुत से दोस्त शायद उस वक्त मौजूद भी हों
अगर उनको याद ना हो, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहा कि अमेरिका और मगरबी दुनिया की इस वक्त तरजीहात ये हैं कि दुनिया में एक नई जुग्राफियाई तकसीम पैदा करें, मुल्कों को तोड़ें, और ये सदी उनके इसी एजेंडे की तकमील के लिए है। मैंने कहा पाकिस्तान भी वो बड़ा मुल्क है कि जिसके लिए उनकी नीयतें और उनके इरादे ठीक नहीं हैं। और जब चाइना के साथ हम तिजारती ताल्लुक बनाएंगे तो फिर यहां पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का आगाज सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ होगा। मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, वरना उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। हमारी बात को सदा बस सहरा की हैसियत दी गई, फिर माशी अदम इस्तेहकाम का दौर चला, फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत अब उठा भी नहीं सकेगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। चाइना गए, आर्मी चीफ को भी साथ लेकर गए और पाकिस्तान में चाइना की सफारतकारी को बहाल करने के लिए उन्होंने चीन की हुकूमत को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहां सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपके यहां अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। और जब आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया, पहले भी हमारी सरमायाकारी जाया हुई और अब दोबारा हम कैसे आए, पहले अपने हालात तो ठीक करो। ये ऐसी बात नहीं जो मैं यहां आपके सामने पब्लिक में बात कर रहा हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कौमी असेंबली के अंदर उनके सामने ये बात कही है और मैंने उनसे कहा बसद एहतराम मैंने उनसे कहा बसद एहतराम आप दोनों चाइना गए, लेकिन आप तस्लीम करें कि आप कामयाब होकर वापस नहीं आए। वहां पर चीन के सदर ने जिस पैराए में गुफ्तगू की थी, उसके बाद चीन के एक मिनिस्टर आए और यहां इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। उसमें भी हमने पाकिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी को खुशामदेद कहा, उनके मजबूत ताल्लुक का तज़किरा किया। उन्होंने इसकी नफ़ी नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर कही कि आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और आपके यहाँ सियासी तौर पर माशी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है, पहले इनको ठीक तो करो ताकि हम आ सकें। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इन मुश्किलात में जाहिर है कि हमने मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क को ताकतवर देखना है और जाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम जब तक अपने किसानों से राब्ता नहीं करेगी, अपने ताजरों से राब्ता नहीं करेगी, अपने मजदूरों से राब्ता नहीं करेगी, उनको एतमाद नहीं दिलाएगी, उनका एतमाद बहाल नहीं करेगी। आपने देखा
इस साल अभी हमने फसल नहीं उठाई थी, गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाया गया? और इतना गंदम मंगवाया गया कि यहां के किसान की फसल उनके घर में रह गई, वो फसल बिक नहीं सकी। पाकिस्तान के पास पहले से गंदम का जखीरा मौजूद था, फिर गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? और सुना यही है कि वो भी गैर मेयारी गंदम था। और अपने मुल्क की उसी साल की गंदम आज जमींदारों के घर में पड़ी हुई है। क्यों? अगर उसका गंदम नहीं बिकेगा, वो अगले साल गंदम क्यों काश्त करेगा? ये होती है मुल्क की मईशत पर कुल्हाड़ा चलाना और मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले किसान की कमर तोड़ना। हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की इन पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस हवाले से आज हमने मर्दान से इस बात का आगाज किया है। ये ज़री इलाका है, सवाबी ज़री इलाका है, चारसद्दा ज़री इलाका है, मालाकंड ज़री इलाका है। इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए आज हमने पूरे मुल्क के किसान को आवाज़ दी है आपके इस इज्तिमा से। और ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान के किसानों की नुमाइंदा इज्तिमा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि यहां तो आवे का आवा खराब है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकेगी। मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी हुक्मरान से ना हो सका तो अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा गया। अगर कोई समझता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो हुक्मरान हो, कि वो पाकिस्तान में कादियानियों की पुरानी हैसियत को बहाल करेगा और उनको मुसलमान का स्टेटस दोबारा देगा, इंशाअल्लाह हमारी लाशों पर यह हो सकता है। हमारी लाशों के और जिंदा इंसानों के ऊपर ये फैसले नहीं हो सकेंगे। नारे तकबीर! कादियानियों कमियों यार दे, अमरीके च कमियों यार दे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा रहा, यही शौक रहा, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इन्होंने मदारस पे हाथ डाला है, कानून साजी की है और अपने नापाक इरादे पब्लिक के सामने रखे हैं। किस लिए रखे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों को खुश करने के लिए। पाकिस्तानी मुसलमान और अवाम, इनकी हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नज़र में कोई हैसियत नहीं। वो अपने आकाओं को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं। यहाँ
कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा किया जाएगा, यहाँ इस्लामी तहजीब का खात्मा किया जाएगा। तुमने अमेरिका से अहद पैमान किया कि तुम कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा करोगे, उनके मदारस का खात्मा करोगे, इस्लामी तहजीब का खात्मा करोगे। और मैंने मदीना मुनव्वरा में आकाए नामदार से वादा किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, यहूदिया को जो यार है, यहूदिया को जो यार है, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में उलूम इस्लामिया और कुरान और हदीस और उनके मराकज़, मदारस और इस्लामी तहजीब, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। लब्बैक लब्बैक। दीनी मदारस के खिलाफ अपना एजेंडा और अपनी जहनी गलाजत अगर तुम पब्लिक के सामने रख सकते हो और उनके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हो अमेरिका की पुष्टपनाही में, तो आकाए नामदार की पुष्टपनाही में हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, देखा जाएगा कि तुम किस तरह दीन को खत्म कर सकते हो और मदारस को खत्म कर सकते हो। सबीलुना 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 सबीलुना। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे किसानों, इस्लाम, उलमा और दीन के साथ आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। आज अहद करें कि हम इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, हम ज़राअत के शोबे को भी तरक्की देंगे, हम मुल्क की मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे, लेकिन दीन इस्लाम का झंडा भी बुलंद करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को भी ताकतवर बनाएंगे ताकि इस महाज पर हम हर जंग कामयाबी के साथ लड़ सकें। हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने सियासी जदोजहद कर दी है। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हर जदोजहद जिहाद कहलाता है। इंशाअल्लाह ये रास्ता हम सबका रास्ता है। हमने जागीरदारों का मुकाबला किया है, हमने जाबिर कुव्वतों का मुकाबला किया है, हम उनके पुष्पनाहों अमेरिका और मगरबी दुनिया का मुकाबला किया है। आज रूस को क्या शिकस्त दी है? रूस को हमने शिकस्त दी है, रूस को अफगानों ने शिकस्त दी है, अपने खून से उनको शिकस्त दी है। अमेरिका समझता है कि अब मेरी बालादस्ती आ गई। सो आपने भी आजमा लिया, आपने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, 20 साल तक अपना कब्जा रखा, लेकिन अफगानों ने आपके खिलाफ भी जुर्रत के साथ अपने खून के नजराना पेश करके तुम्हें इस सरजमीन से निकाला है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम पाकिस्तान में आकर मदारस का खात्मा कर सकोगे, खातिर जमा रखो, तुम्हारा बाप भी ये मिशन पूरा नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर। अमेरिकेचे कमी यार दे, अमेरिकेचे कमी यार दे। कायदी जमीयत इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहेब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहेब। और कत दानले पलारे, दानले पलारे पे असम्बले कब्जा के, जे इख्तिदार पे कुर्से कब्जा के, नुआरा मैदान जमुंग पलास के दा, मैदान जमुंग पलास के दा खलक वो मैदान के राउजी और कसम न कफल हुकूमत राना बच के बया। ईवान नहीं, ईवान नहीं, ईवान
ایوان کدغوی خو نہیں او انشاءاللہ په میدان کې مونږ ولاړ یو په دې ایوان به مو قبضه کوو انشاءاللہ میدان بھی ہوگا ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ اس په دواړه کو انشاءاللہ په 2018 کې ایوان جوړ شو مونږ ناکامه کړ اوس دې بیا هغه لوبه وکړه نه بیا رانه چلی که خدای کول ملک کے نظام ٹکا ہے آئین مطابق ملک کو چلوئے مونږ د ملک وحدت غواړو خپلو مطالبو په اساس باندې د ملک یووالی دا زموږ ایجنډا ده ملک خلاف سازشونه نه منو چې هر څوک په ډېرې ښایسته جامې کې هم د ملک د ماتولو او د ملک د وحدت تباه کولو سازشونه کوي جمعیت علما به انشاءالله هغې ته په مقابله کې ولاړ دا پاکستان او دا وطن زموږ کور ده دا به آبادو دا به مضبوطو دا به دې ته به استحکام ورکو او انشاءالله د دې وطن به یو اسلامي نوم وي اسلامي شناخت به بحال کوو که خدای کول نو انشاءالله د مردان ډېرو غیرتمندو کسانانو زمیندارانو پښتنو مسلمانانو په یو آواز شئ جمعیت علما د پیغمبر پرچم پورته کړی ده دې پرچم لاندې یو شئ انشاءالله پاکستان کې به انقلاب راځي د اسلام انقلاب به وي د خوشحالۍ انقلاب به وي د کسان انقلاب به وي د مزدور انقلاب به وي د تاجر انقلاب به وي د غریب انقلاب به وي دا ټولې نارې په تاریخ کې دروغجنې ثابتې شوې لیکن جمعیت علما تجربه وکړله چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولی شو او انشاءالله ثابتو به الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ ملګری شي الله چې ملګری وي د دنیا هېڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ملګری به انشاءالله العزیز منځ بدل